Hi friends, how are you all? I am Sabir Hussain Lashkar. Welcome you all on behalf of Royal Junior College Hailakandi, Assam. See, in the last video, in the last class, we have studied about. We have already solved a problem which was on issue and redemption of debenture, and we have learned basic about debenture and also solve a simple problem, right? So today we will solve one more problem, inshallah. So let's start. See, लास्ट क्लास में हम लोगों ने की थी कैश वाला एक थी और उसके साथ एक पार्ट, ठीक है? मतलब कैश तो डेवेंचर तो हम लोगों को पता है कि डेवेंचर कैन बी इशूड normally in generally three types, that is in cash, considered from other than cash, and as qualitative security. So now we are doing under this topic, that is cash, issue of debenture at cash, in cash. Okay, so we have done this one, the very last video, and now today we will study this two, inshallah. So see, तो पहले जो ये लास्ट वीडियो का जो हम लोग का लास्ट एग्जाम्पल था वही ले लेते हैं. Okay, let us take the example that is which was we have already solved at our very last class. Okay, it was ABC limited, right? X Y Z limited, X Y Z limited. Okay, was inviting public 10,000 10% debenture, right? Okay. This was our last class example, right? I have done this one, okay? And now let us take discount, okay? But see, what is discount on issue of debenture? ये केस में हम लोगों ने देखी थी कि 10,000 डिवेंचर हम लोगों ने इश्यू किए थे. हम लोगों को कितना मिला था, मतलब पब्लिक से हम लोग कितना पैसे लिए गए थे. देखिए 10,000 मल्टीप्लाई, ये 10 प्लस 10 मतलब ये टोटल करके कितना होगा, ये इकट्ठा करने के बाद कितना होगा, 100 ही होगा ना. इसको तो दो पार्ट में लिया जा रहा है, वही है ना. सो कंपनी टेकिंग दिस अमाउंट फ्रॉम पब्लिक इन टू डिफरेंट कॉल्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग इन लमसम. ओके, इंस्टेड ऑफ putting lump sum at one time ना. सो एक टाइम पे करने से पहले कंपनी क्या करेगी, ये दो कॉल में ले रही है, वही है ना, दो मतलब इंस्टॉलमेंट ले रही है ना. ऐसे देखिए, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कितना होगा, $10 लाख होगा. तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने जो सॉल्व किए थे ना, company by selling this 10,000 debentures, company was collecting how much amount, this much amount, na? So this amount. But at this topic, now our topic is this one. Okay, I am discussing. Now we will concentrate on
discount and issue of debenture. Okay, as per Companies Act 2013, discount are not share are not allowed to issue at discount, right? So only at premium and at par. We can issue share in India only at par and at premium. But in the case of debenture, it is all three options are available. ठीक है, ये तीनों options available है. तो देखिए ये वीडियो में हम लोगों ने मतलब लास्ट वीडियो में वही प्रॉब्लम किए थे ना, 2 करोड़ 5 लाख हम लोगों ने कलेक्ट किए थे, एप्लीकेशन में 5 लाख लिए थे, एलमेंट में 5 लाख लिए थे, वही तो पब्लिक से कलेक्ट किए थे ना, और हम लोग रिपेमेंट ही वही इतना अमाउंट ही करेंगे ना, विल पे द सेम अमाउंट आफ्टर 5 years, राइट? सो नाउ सी इफ वी टॉक अबाउट डिस्काउंट, ओके, अगर हम डिस्काउंट की बात करें, अगर ये शेयर मान लो कि ये डेमेंचर मान लो कि डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता तो क्या होता? ठीक है, डिस्काउंट का मतलब क्या है? थोड़ा कम लेंगे पब्लिक से, ठीक है, मतलब इसका प्राइस कितना है? और एक डेवेंचर का प्राइस कितना है? इट इज 100 ना, 100 ईच। ये जो 100 है ना, हम 100 पब्लिक से नहीं लेंगे। अब मान लेते यहाँ पे 10% डिस्काउंट मैंने लिख दिया, 10% डिस्काउंट मान लो, अगर ये डिस्काउंट पे होता तो क्या होता? प्रॉब्लम देखिए, 10%, 100 का 10% कितना होता है? हम लोग को पता है 10 है, तो 10 लेस करेंगे कितना होगा? 90 होगा ना। अब पब्लिक से हम लोग कितना रेज करेंगे? पब्लिक से तो इतना अमाउंट हम लोग को पब्लिक के हम लेंगे, ठीक है, लेकिन पब्लिक को वैल्यू कितना देंगे? ये अमाउंट देंगे, मतलब पब्लिक से लेंगे कम, विल कलेक्ट लेस फ्रॉम द पब्लिक a certain amount, that is as per it will depend upon the rate of discount. Therefore here in our case it is 10%, so we will deduct 10% from the face value, or we probably face value or nominal value, okay, from that amount, and whatever the remaining amount we will collect from the public, but in the books of accounts we will write it is this amount, okay. बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग कितना लिखेंगे? सेम यही अमाउंट हम लोग लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग ये 10% जो डिस्काउंट पे पब्लिक से कम लेंगे, लेकिन जो रिटर्न करेंगे ना, इतना अमाउंट रिटर्न करेंगे, लेकिन लेंगे पब्लिक से इतना अमाउंट, मतलब थोड़ा कम लेंगे ना। ये जो थोड़ा कम मिलेगा हम लोग, ये जो ₹10 कम मिलेगा ना, ये क्या है? ये डिस्काउंट है, ये हमारे लिए लॉस है, ठीक है, ये क्या है? हमारे लिए लॉस है। अच्छा, बात ये है कि ये तो पता है डिस्काउंट होगा, हम लोग शेयर के टाइम पे भी किए थे कि डिस्काउंट पे मतलब शेयर तो इशू नहीं होता है बेसिकली इंडिया पे, मतलब अभी तो नहीं इशू हो रहा है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ नहीं है एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी एंड कंसिडरेशन और अदर थिंग के। ये दोनों टॉपिक, ये दोनों पॉइंट्स छोड़ के, मतलब ये दोनों सिचुएशन छोड़ के, और जनरल शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जाता है ये इंडिया में, ठीक है। सो इंडिया में नहीं होता है, देखिए, बट हम लोग तो एक प्रॉब्लम सोल्व किए थे ना, क्यों किए थे? इसके लिए किए थे, ठीक है। जो यहाँ पे आके हम लोगों को दिक्कत होने वाला था, इसीलिए मैंने वहां पे भी शेयर के टाइम पे तुम लोगों को एक डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम करवा दिए थे, ठीक है। अच्छा देखो, अभी वहां पे भी हम लोगों ने देखे थे कि कम हम लोगों को मिल रहा है, मतलब पब्लिक कम देंगे, इन पब्लिक को हम थोड़ा ज्यादा देंगे। क्यों ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, मतलब 2-3 सिचुएशन में कह रहा हूँ, कंपनी ऐसा होता है जो इसका मार्केट में इतना डिमांड नहीं है, जो प्रोडक्ट सेल कर रही है ना, मार्केट में इतना डिमांड नहीं है, पब्लिक मतलब शेयर खरीदने के लिए, शेयर और डिवेंचर पब्लिक खरीदने के लिए मतलब राजी नहीं हो रहा है, मतलब इतना अच्छा चल ही नहीं रहा है मार्केट पे। और जैसे कि हम लोग कोविड-19 चल रहा है ना, तो ऐसा सिचुएशन, अगर कोई कंपनी चाहे कि वो मार्केट से पैसा उठाए, कौन पाए? पब्लिक, किसको पता है कौन रहेंगे कौन जाएंगे, किसी को तो पता नहीं। सो क्या होने वाला है फ्यूचर में, कोई भी मतलब किसी को कुछ मालूम नहीं ना। सो लेकिन इसी टाइम पे अगर कोई कंपनी चाहे कि मार्केट से पैसा उठाए, तो पब्लिक कौन जाके इन्वेस्ट करेगा? सही ना। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, और अगर कंपनी तो इतना अच्छा मार्केट में चल ही नहीं रहा है, ठीक है, मार्केट में इतना अच्छा इसका डिमांड, प्रोडक्ट है, डिमांड नहीं है, तो इसी टाइम पे कंपनी क्या करती है? डिस्काउंट पे डिवेंचर और शेयर इशू करती है। शेयर तो अभी अलाउ नहीं है, तो डिवेंचर इशू करती है, ठीक है। और भी बहुत सारे पर्सनल केस हो सकता है, ये तो नॉर्मल में 1-2 केस का, और भी पर्सनल इंटरनल केस भी हो सकता है, ठीक है। जो परफॉर्मेंस ना अच्छा नहीं दे रहा है, तो यही भी एक सवाल प्रॉब्लम हो सकता है, दैट कंपनी इज नॉट रनिंग वेल एज एक्सपेक्टेड, सो दैट मे बी दिस मे आल्सो बी अ प्रॉब्लम। सो द रीजन फॉर इशूइंग डिवेंचर एट डिस्काउंट, सो ओके, चलो आप देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये 90 हो गया ना, अब यहाँ पे आते हैं फिर से, अब ये 90 हुआ,
पहले तो हम लोग ने 100 से मल्टीप्लाई किया ना, अब कितने से करेंगे? 90 से करेंगे। 110,000 सॉरी या मल्टीप्लाई बाय 90। Now we will collect 9 lakh from the public, but we will return them how much? Fully 10 lakh. Why? 1 lakh less will return 1 lakh more because we have issued share debenture at discount. So that is the actual reason. Okay. So चले एक problem कर लेते हैं. Now let us take this example. Okay. Same example. We have already solved a problem based on that. Only I have added this one. Okay, and this point. There is 10% discount, right? And everything is same. And one more thing. Here question does not clearly mention that at whose stage. Okay, see here there are two stages, no? First is second, two installment. But question does not clearly said or mention that in at which stage we will add this discount portion, right? But as usually we will add it at the time of allotment. Okay, if nothing mentioned, then we will add it allotment. Okay, but if it is specifically mentioned, then we will add the stage whatever it is mentioned in the question. Okay, we will solve the problem based on the question, as per the question. Okay, now nothing mentioned, so we assume that we will add it at the time of installment. See, and one more thing again, see, if it is 5%, the problem was like that, 5% on, let me write here, 5% on application and 5% on allotment. Then what we will do? Same. Okay, we'll solve both the case. Okay. We know in the books of XYZ Limited, Jan entities, we know that ना, हम लोग ये सब तो पता है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं जा रहा, और फॉर्मेट भी हम लोग पता है. I assume that you will be writing this with your proper format. Okay, now see. See, this entity we have already passed at the time of issue date cash at par. Okay. Now see, this entity is same because now I have assumed that discount. I will add discount at the time of allotment. Okay, at the time of allotment. So we know when application when we receive application money, we already debited bank account debit because our bank will increase. So bank account debited how much? 5 lakh. 10,000 debenture multiplied by 50 because the price of application is 50 per share. At the time of application, company will collect 50 per share for debenture. So multiplied by 15, how much it is? It will become 5 lakh, right? Next, we have received for application, right? So we will write here 10% debenture application account. Then same amount narration being debenture application money receipt. That's it. Okay. Next. Now see. Next time, what we will do? We usually transfer this entity to actual debenture account. Here we have passed the entity only related that. Here, what does it mean? This entity means that we have only the collected amount collected, and we have written in our
books of account, that we have received that much of application. That's it. Okay. Now we will actually transfer this amount to the debenture account. Okay, actual debenture account. Now see, at the time of transmission, what we will do? We'll actually write this one debited, because we have to cancel this one. This one actually is not that's for receiving application. We have passed this entry, right? So here, same 10% debenture application account, right? So debited, how much amount? Same amount. Next, to debenture 10% actual debenture account. Now we are transferring this amount to the actual debenture account. Okay. Now actually we are going to write that we have this much of, we are going to create the actual liability. The debenture is liability now for us. So long term liability, long term or medium term maybe, right? So 10% debenture account, right? Debenture account. How much? Same amount. Okay. Now narration being debenture application money transferred. ये debenture के application money हम लोग transfer कर, that's it, nothing. Okay. अब देखिए, ये तो application receive करने का. This entry for only for receiving application. This entry for transferring. Okay. Now we have created debenture actual debenture account. Okay. And actually net effect. What is the net effect? Net effect is nothing. See, net effect is this account and this account. This account once credited and once again it is debited. So debit credit done, cancel. The net effect will be nil. And see, bank account debit to 10% debenture. So it's a net effect will be there this amount. Okay. हम लोग बैंक ज्यादा हुआ, बैंक इंटरेस्ट हुआ, क्यों? हम लोग को पैसा मिला. We have collected money, right? So by issuing debenture. Okay. So our bank will increase, and at the same time our liability will increase because we have sold debenture, right? We have to pay this one, this amount we have to pay after the maturity period. Let us assume this question is maturity period is 5 years. Okay, so then this is our liability. We must have to pay this amount now after 5 years. Okay, now see, okay done. ये तो हो गया. कोई भी सवाल है तो कह सकते हो. Now see, if the question has been asked that you add this amount at the time of what application, then what we will do? See, we will do nothing at the time of receiving application. Just remember one thing very clearly, that when we when we create actual debenture account, if it is the debenture, in the case of debenture, then it will be in the case of debenture, or if it is at the time the case of share, maybe whatever maybe it is na. So just when we create actual account, if it is debenture, then now this is actually we have created a debenture account, right? Actually we have transferred the money, or we can say that we have written that we have issued debenture. Now we have collected money by issuing debenture. Now this is the proof, right? This will be shown in our books of account. Now in the company's books of account, right? So whenever we were going to create the whatever liability and or share, na? Maybe debenture or liability, whatever. So at the time of creating this account, we'll adjust debenture discount or premium, whatever it is. Okay, just remember this one. अगर ये होता कि अब ये कहता है कि हम लोग मतलब डेवेंचर को ऐड करो, मतलब ये एप्लीकेशन के टाइम पे ऐड करो, तो यहाँ पे हम लोग रिसीव करने के टाइम पे कुछ भी हम लोग एडलेस नहीं करेंगे. क्यों? ये तो सिर्फ जस्ट हम लोग रिसीव कराने का टाइम है, ठीक है. एज्यूम इसके बाद जाके कंपनी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया कि ये फुली कॉल्ड अप, फुली पेड अप, फुली सब्सक्राइब और कॉल्ड अप एंड पेड अप. ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो क्या करते, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट अलॉटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना. हम लोग शेयर के टाइम पे देखे थे, सो प्रोडक्ट अलॉटमेंट भी हो सकता है. ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट तो हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट हो सकता है ना. तो ये तो जस्ट एप्लीकेशन रिसीव करने का टाइम है. ये क्या एप्लीकेशन रिसीव करने का टाइम. मान लो कंपनी इन्वाइट कर रही है, सपोज द कंपनी ओके, सपोज द रेंज, सपोज फ्रॉम एनी 10th of any month to 30th of any month, this range. Okay,
ना कंपनी मार्केट ये जो गैप है 10 डेज का गैप है ना, तो मान लो ये 10 डेज का गैप में कंपनी ये डिवेंचर इश्यू करने जा रही है। ये जो एप्लीकेशन होगा यहाँ पे जो रिसीवर है ना, ये तो एप्लीकेशन स्टार्ट करने का डेट ना, ये खत्म होने के बाद ये जो अब तक जितना अमाउंट रिसीव किया हम लोगों ने ना, वही एंट्री उसी डेट का, यहाँ पे जितना अमाउंट रिसीव किया दिस डेट एंट्री, ओके, वही डेट का रिलेटेड टू एंट्री ऑन दिस डेट when the our application will be closed, मतलब सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाएगा ना, क्लोज होने के बाद जो डेट है वही डेट का एंट्री है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे ट्रांसफर हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं एक्चुअली यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे यहाँ पे रखना है कि नहीं। ये तो मान सकते हैं हम लोग 10,000 अप्लाई किया, 10,000 रिसीव कर लिया, हो सकता है 20,000 रिसीव किया, हो सकता है कौन रिसीव किया, तो ये भी तो केस हो सकता है ना। तो यहाँ पे जाकर हम लोग एक्चुअल डिसीजन लेंगे और डिसीजन के बाद हम लोग एक्चुअल अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। So that's why we always add at the time of creating the, if it is the case of debenture, then at the time of creating debenture we'll add whatever, if it is discount or premium, whatever it is, okay, we'll adjust at the time of transferring or creating the actual liability account, okay. Now see, so this was related to application done, okay. Now next is allotment. देखिए तो यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं, डेट इज नॉट देयर, सो लेट मी पुट ए क्वेश्चन मार्क हियर, राइट। नाउ सी, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट वी नो एंट्री वी हैव स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ इशूइंग शेयर ना, 10% debenture allotment account, right, allotment account, short form allotment account, right. So amount will be 10,000 multiplied by how much? See, this is the nominal value, and nothing mentioned about in the question that when we will add discount, right? So we assume that discount including by this time, okay, with this amount. So we will deduct 10 because 10% 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है. So we will deduct this 10 from this one, okay. So multiply by 40. Now see. Okay, let me write here. Then I will again come here and try to discuss detail, inshallah. 40,000. Discount on issue of debenture. Okay, debenture account. How much? See, 10,000 multiplied by 10 because 10 is discount, so multiplied by 10. 10,000. Sorry, this 4 lakh. Okay, 4 lakh, and this amount will be 1 lakh. So total will be 5 lakh, right? Now see, to debenture okay, how much? 5 lakh. Okay, being debenture allotment money due including after adjusting discount. ये देखिए after adjusting discount. अब यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान रखिए कि पब्लिक से हम लेंगे कितना पैसा, पब्लिक हम लोग कितना पैसा देंगे, पब्लिक हम देंगे this amount. They will deposit this amount into our bank, but we will if they will write in the books of account we are going to write this amount, okay, because you know यहाँ पे हम लोगों ने इशू के अलॉटमेंट के टाइम से भी एप्लीकेशन टाइप में मैंने कहा कि ये जो डिवेंचर का एक्चुअल अमाउंट हम लोग क्रिएट किया ना, सो इसके अमाउंट अकाउंट पे बुक्स वगैरह हम लोग कितना लेते हैं, 5 लाख लेते हैं, लेकिन रिसीव कितना करेंगे, 4 लाख, 1 लाख क्या है, लॉस है हमारा, क्यों लॉस है भाई, हम लोग डिस्काउंट पे इशू किया, सो डिस्काउंट पे इशू किया, 1 लाख डिस्काउंट दिया पब्लिक को, मतलब ज्यादा सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को हम लोग ने क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया हम लोग को, सो डिस्काउंट दिया तो हम लोग का लॉस तो बिहार करना ही है, ये बेसिकली मतलब अच्छा ये तो मैंने खींचा क्यों पता है ऐसा, और उस टाइप ऑफ कंपनी रिलेटेड टू उस टाइप ऑफ कंपनी दिस
situation will arise, you know, so there may be a number of situation. I have said 2 or 3 situation. Okay, so there may be a number of situation. तो ये हो गया, ये देखिए। और डिस्काउंट हम लोग क्यों डेबिट किया क्योंकि हम लोग को पता है ये लॉस है, हमारे लिए लॉस है ना, डिस्काउंट लॉस है ना, ये वो जो 1 लाख हम लोग कम मिले देखिए हमारे लिए लॉस, तो लॉस तो डेबिट होता है, लॉस डेबिट होता है ना, तो गेन होता है। तो अगर यहाँ पे प्रीमियम होता तो क्या हम लोग क्रेडिट पे पुट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, और एक बात देखिए यहाँ पे नोटिस करने के बाद देखिए ये जो एप्लीकेशन था ना, एप्लीकेशन हम लोग रिसीव किए थे, एप्लीकेशन टाइम पे हम लोगों ने क्या किए थे, ये पहले तो हम लोग एप्लीकेशन रिसीव करते ना, नेक्स्ट जगह ट्रांसफर करते, और ट्रांसफर के टाइम पे हम लोग एक्चुअल डिवेंचर अकाउंट क्रिएट करते, राइट। बट यहाँ पे देखिए अब तो हम लोग को पता है ना, ये 10 लाख 10,000 शेयर हम लोगों ने सोल्व किया, जितने लोगों ने, मान लो भाई 10,000 ही लोगों ने परचेज किया, जितने लोगों ने परचेज किया, अब तो ये आइडेंटिफाइड पर्सन है, हमारे लिए आइडेंटिफाइड है ना, जो ये वो बंदा हम लोग का मतलब शेयर खरीद के रखा, दिस, ठीक है, हम लोग को पता है ना, वो तो क्यों खरीदा शेयर, डिवेंचर क्यों खरीदा, क्योंकि वो तो पता है वो तो देंगे पैसा ना, हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग को पैसा मिल जाएगा ना, सो वो भी दे देंगे, तो इसलिए तो परचेज किया होगा शायद ना। सो हम लोग आइडेंटिफाइड पर्सन है, हम लोग को वो भी पता है कि वो लोग दे देंगे, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो ड्यू करेंगे ना, ड्यू के साथ ही हम लोग डिवेंचर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, वही लॉजिक यहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेटली नेट इफेक्ट देखना क्या रहेगा, सेम ही रहेगा और कुछ चेंजेस नहीं आएगा। अब ठीक है, ये तो मैंने कहा दिया, ये क्यों हम लोगों ने डेबिट किया, क्योंकि ये लॉस है हमारा भाई, लॉस है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर क्या होता है, लॉस होता है। सो ये हम लोग का स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे, क्या करेंगे, ये देखो 10 लाख है, अब सॉरी 1 लाख है ना, इसको मतलब ठीक है, और एक वीडियो में ये तो एक एंट्री गया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री माने रिसीव करने का टाइम कितना अमाउंट रिसीव करेंगे, इस मच अमाउंट विल रिसीव हाउ मच, ओके, but we'll give return them this much amount, because why not 1 lakh, because 1 lakh is lost due to discount. Okay, now bank account debit, bank account debit, multiplied by, और ये तो मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, ये पे तो हम लोगों को सेम ही अमाउंट हम लोग पता है, 4 लाख हम लोग रिसीव करने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टू ये जो अकाउंट हम लोग डेबिट करके रखा ना, सॉरी यहाँ पे डेबिट किया है, इसको क्रेडिट करेंगे, नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएगा, सो 10% डिवेंचर अकाउंट, being debenture allotment money received after adjusting discount. Okay, ये कहते हैं ना नरेशन हो। आप देखो इसका नेट इफेक्ट क्या है, ये यहाँ पे एक बार डेबिट हुआ, यहाँ पे एक बार डेबिट हुआ, यहाँ पे जाके और एक बार क्रेडिट हुआ, सो डेबिट क्रेडिट क्या हुआ, नेट इफेक्ट नील कैंसिल हो गया, ये तो गया, ये एंट्री गया। अब नेट इफेक्ट क्या रहा, ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट, ये भी तो डेबिट है ना, सो डेबिट एंट्री 1 लाख, सो 5 लाख हो गया, डेबिट कितना, डेबिट हम सो हम ले रहा है पब्लिक से 4 लाख एंड दे रहा है पब्लिक को कितने का वैल्यू देंगे हम लोग, तो वादा किया हम लोग को ये 5 लाख पूरा देने का, तो 1 लाख हम लोग को कौन मिलेगा, टू डू डिस्काउंट। सो आई होप ये डिस्काउंट वाला तभी हम लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो कर सकते हो, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट। ओके, नाउ इसको आप प्रीमियम पे लगा देते, ठीक है। ये प्रॉब्लम, ये तो डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम था तो खत्म हो गया, और डिस्काउंट इसके साथ होता सेम ही, हम जब ट्रांसफर करते ना, ट्रांसफर के टाइम पे हम लोग ऐड करते, ठीक है, ओनली ट्रांसफर के टाइम पे, इससे पहले नहीं, और जब रिसीव करें इसके टाइम में नहीं है, ठीक है ना। इसको 10% डिस्काउंट, 10% प्रीमियम, प्रीमियम, ओके, कंप्लीटली ये 18 ओके। आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू।